ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਐ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆ ਬਜਾਏ ਜੀਓ। ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਵੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਵੇੜਿਓਂ ਟਾਕ ਪਲਾਸ ਹੋਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਗੇ, ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਗੇ, ਹੋਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਗੇ।
होए भी चंदन, होए भी चंदन गोए रगे, होए भी चंदन गोए रगे। बसे जो चंदन पास, होए भी चंदन गोए रगे, होए भी चंदन गोए रगे। भाई ओ चंदन, होए भी चंदन गोए रगे। बसे जो चंदन, कबीर चंदन का बिरवा पला, बेड़ों टाग पलास, कोई भी चंदन होए रहे। बसे जो चंदन पास, बन बन में चंदन नहीं, एक बन विच चंदन दा बूटा देखण विच नहीं आउंदा। इसी तरह कबीर साहब नूं बूटियां दे नाल कोई मतलब नहीं सी। कबीर साहब एक ब्रह्म ज्ञानी होए ने। गुरु ग्रंथ साहब अमृत सरोवर दे विच आप परमहंस स्वरूप हो के गुरसिख प्यारिओ, हंस स्रोतिओ, आपो अपने समय नूं सफला करन वास्ते पहुंचे हो। लाहा लो, सतगुरु जी नूं हथ जोड़ बेनती कीती गई, सत्संगत कैसी जानिए। गुरु जी ने उत्तर दिता, जिथे एको नाम बखाणीए। बखाणीए दा मतलब बखाया भी जाता है और बख्यान भी किया जाता है। जिथे एक नाम की भी चर्चा होती है, उथे दूसरी कोई गल नहीं। इथे कबीर साहब आपदे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी नूं चंदन दे बूटे का एक दर्जा दिंदे ने कि वो चंदन जी दे अंदर इतनी पावर है। चंदन दे नेड़े बसन वाले ढक पला, आम जिमीदार आपां सरकड़ा कहने आ, उन्हां दे विचों भी सुगंधियां आउंदियां ने, क्योंकि वो चंदन दे नेड़े बसिया है, खड़ा है। चंदन दे बूटे नूं कोई लकड़हारा आरी लैके कट्टण गया, कोई लकड़हारा उसनूं वढदा कुहाड़ा लैके, पर चंदन दा बूटा लकड़हारे नूं बुरा भला नहीं कहंदा, माड़ा नहीं कहंदा, सगों उहनूं भी सुगंधी दे दिंदा है। उहदे
ਜਿਹੜੇ ਆਰੀ ਜਾਂ ਕੁਹਾੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਪਾਂ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਬਰਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਰ ਦੇ ਗੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਣ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨ ਮਾਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨ ਤਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਾਣ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਸਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਢੱਕ ਤੇ ਪਲਾ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਢੱਕ ਤੇ ਪਲਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਰਕੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਦਿਕ ਬੂਟੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਆਉਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਚੰਦਨ ਰੂਪ ਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੁਲਾਹੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਧਨਾੜ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਦ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਸਣ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ 5-4 ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੁੰਠ ਧਾਮ ਛੱਡ ਕੇ?
वो कहते नारद जी, मेरे सेवक मेरे भगत मेरा कीर्तन करते ने, मेरी उपमा करते ने, मैं आप दी उपमा वडियाई नूं सुनने वास्ते नहीं आया, मैं तो आप दे भगतां दे दर्शन करन आया, जिहड़े भगत मैनू परमेश्वर समझ के अकाल पुरख वाहिगुरु दा दर्जा समझ के गुण गाउंदे ने, उन्हां दी रसना ते मेरा बस है, उन्हां दे हिरदियां च मेरा बस है। इधर पंजवें पातशाह कहंदे ने, भगवान नूं किधर लभण जाओगे, किसी गुरुद्वारे विच है, किसी मंदिर विच है, नहीं। सतगुरु जी ने आप दी पवित्र वाणी दे अंदर फरमान कर दिता, बसे साध की रसना प्रभ जी वसदै, प्रभ जी वसदै, बसे साध की रसना प्रभ जी वसदै, प्रभ जी वसदै, प्रभ जी वसदै, प्रभ जी वसदै, बसे साध की बसे साध की प्रभ जी वसदै, बसे बसे साध की रसना प्रभ जी वसदै, प्रभ जी वसदै, बसे साध की रसना प्रभ जी वसदै, हर जी वसदै, प्रभ जी वसदै, प्रभ जी वसदै, प्रभ जी वसदै, प्रभ जी साध की रसना, बसे साध की प्रभ जी वसदै, 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 प्रभ जी बसे साध की रसना प्रभ जी वसदै, वसदै, बसे साध की रसना प्रभ जी वसदै, प्रभ जी वसदै, प्रभ जी वसदै, प्रभ जी वसदै, बसे बसे साध की रसना,
परमेश्वर दा वासा, वाहिगुरु दा वासा किहदे ते है? सतगुरु जी कहते मैं प्रभ जी वसे साध की रसना, रसना ते बस है। गुरु की बाणी नूं सुनन वास्ते निमरता विच, निमरता अमृत रूप बाणी नूं सुनदे सुनदे, नाम जपदे जपदे उहदी अंदर रच गए, उहदी अंदर समा गए। बाणी दा प्रताप ऐसा है, जिहड़ी वस्तु नूं लैण वास्ते आउंदे आ, अमृत रूप बाणी सुनन वास्ते आउंदे आ। जिथे अज धन गुरु रामदास की पवित्र नगरी, निमरता वाली गल, धन गुरु चौथे पातशाह, जिथे गुरु नानक पातशाह महाराज के सुपुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज, उन्हां दा आउणा होया, बाठ नगर तो चल के आए। तो जिस वेले परिक्रमा विच आए, चौथे पातशाह महाराज वालों नदर करके कहंदे ने, कहंदे रामदास एडा लंबा लंबा दाड़ा क्यों बधाया है? बाबा श्री चंद जी महाराज के ने, गुरु नानक पातशाह ने निर्मला पंथ मारिया सिक्का जगत विच। सिक्का भाव एक शब्द का प्रताप, सारी दुनिया के उत्ते राजे महाराजियां दा आम कहावत किहदा सिक्का चलदा है। अज गुरु नानक पातशाह का सिक्का मारिया सिक्का जगत विच, नानक निर्मल पंथ चलाया। निर्मल पंथ भेख, निर्मल मैंने उज्जल, सब तो उत्तम पंथ। गुरु नानक पातशाह महाराज के सुपुत्र, आदि शक्ति का अवतार शिव जी भगवान का बाबा श्री चंद जी महाराज, जेड़े अवधूत रहे, उन्होंने उदासी संप्रदा नूं, जिहड़ी उदासीन संप्रद है, ये उन्हां दे घर दे विचों ही दो टाणियां हजूर दी निर्मला भेख, उन्होंने दूसरा धर्म उदासी संप्रदा चला दी। चौथे पातशाह के पवित्र चरणों च पहुंच के पूछया, कहने ये दाड़ा क्यों बधाया? सब तो लंबा दाड़ा चौथे पातशाह का सी। हुण गुरु चौथे पातशाह बैठे गद्दी ते गुरु नानक दी दे, वो गुरु नानक दे सुपुत्र। इत्थे हुण निमरता वाली गल यह है, चौथे पातशाह ने आप दा दाड़ा पकड़ लिया, कहंदे महाराज मैं भुल गया, चंगा तुसी याद कराता। ये दाड़ा तो मैनू मेरे गुरुदेव ने तुहाडे वर्गे सतपुरुषां दे चरण झाड़न नूं दिता है। चरण झाड़न, केसा का कर चबुर टलावा, चरण तोड़ मुख लाई। ये निमरता है, एक गहना है, गहना जेड़ा गहना कदी भी खराब नहीं हुंदा, ये वो गहना है, ये वो प्रताप। एक ही बचन उन्होंने अंतरजामी भी कहा गया, सत बचन पवित्र बचन जिन्हां ने मन्निया, जिन्हां ने मन के उहदे उत्ते
अमल करना शुरू कर दिता, हौली हौली, धक्के नाल नहीं, जोर नाल नहीं। जोर ना जुगती, जुगत नाल, जोर नाल संसार नहीं छुटता। जी जोर कहिए भी धक्के नाल सी कोई दिन मर्तबा पा दिए, नहीं, कोई जुगती है, कोई तरीका है। वो कायदा जिन्हां कोले ज्ञान है। महापुर कहंदे एक इहो जिहा परिवार सी जिन्हां दी कोले जुगती नहीं सी। उन्हां नूं इह सी भी नेरा साडे घर विच है। वो रात नूं नेरे दियां पंडां बन बन के एक दृष्टांत है समझाउण वास्ते, कई तरह के दृष्टांत देने पैंदे ने, साखियां प्रमाण समझाउणा मन नूं ही है। केवल उन्हां दी घरे सारी रात नेरा टोलदे रहे। अज्ञानता का भी असी नेरा टोल रहे हैं। आपां चानण च नेरा टोल रहे हैं, वो नेरे च नेरा टोंदे सी। अज्ञानता दे विच नेरा ही ढोंदा है जीव आत्मा, जिन्ना चिर अज्ञान है। जद ज्ञान मिल गया फिर चानण मिल गया। समा होया एक सतसंगत करन वाली बच्ची उन्हां दे घरे आई। सारा परिवार कि भाई दिने आराम करो, रात नूं जागांगे। की गल है? उल्टी खेल। वो कहंदे असी आपदे घर विचों नेरा कढ़ण दी कोशिश करदे हां, नेरा बहुत है। वो कहंदी मैनू सेवा दे दिओ, मैं कढ़ दिन्नी हां। वो परिवार वाले कहंदे इन्ने मैंबर असी घर वाले बजुर्ग सारे, साडे कोलों तां निकलिया नहीं, तू कली किवें कढ़ देंगी? वो कहंदी इक्को ही जुगती ना, इक्को ही तरीके नाल अजे ही रात नूं नेरा अपने घर चों भज जू, चाहे गुआंढियां दे जावे चाहे किते होर जावे। उन्हें दीवा बनाया आटे दा, दीवा बना के जोत लाती। पातशाह कहंदे ने गुरबाणी दे अंदर दीवा वले हनेरा जाए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी, जद दीवा बल गया हनेरा अपने आप चलिया गया। सूरज उदय हो गया, हनेरा चढ़िया गया। किथे गया? गया किते नहीं, है इत्थे ही। सूरज की रोशनी नेरे नूं खा गई, दिखण नहीं दिंदी। जदों सूरज ने अस्त हो जाना है, छिप जाना है, उदों नेरे ने प्रकाश हो जाना है, नेरे ने आ जाना है। जिथे गुरु रूप सूरज का प्रकाश है, उथे कदे भी कूड़ रूपी नेरा नहीं रह सकता। जिथे गुरु रूप सूरज का प्रकाश नहीं, उथे कूड़ रूपी नेरा पहला तो ही डेरे ला के बैठा हुआ है। किवें चकांगे? कोई तरीका है, कोई यतन है? सत्संगत दे विच जिथे एको नाम बखाणीए, नाम जपदे जपदे चुप हो गए। चौथे पातशाह का यह बचन सुन के बाबा श्री चंद जी कहंदे निमरता दे नाल तुसी साडे बजुर्ग दे कोलों गुरु घर दियां खुशियां ले लियां, मान प्राप्त कर लिया, वडियाई ले ली, ये गद्दी नूं प्राप्त हो गए केवल एक निमरता दे नाल। गुरु जी कहंदे ने सतसंगत दे विच आके ज्ञान भी मिलदा है, अज्ञान चलिया जांदा है। सतसंगत दे अंदर जो चल के आउंदा है, दो समय दे नाल समा मिल के
मेला दो कड़ियां, एक कड़ी आधी कड़ी, एक घड़ी ते अद्धी घड़ी नूं मिला दिए, सत्संगत दा मेला 2.5 घड़ी दा बन जाता है। सत्संगत दा मेला जदों प्राप्त होया तां गुरु दी याद आई, गुरु दी वडियाई कीती। वडियाई करन वाले नूं की मिलदा है? जेड़ा 8 पहर तेरा नाम जपदे ने वो किहो जे ने? जिन्ना ना बिसरे नाम सी कनेहिया, जिन्हों नाम नहीं बिसरदा, चाहे वो वस्त्र पाउंदे ने नहीं पाउंदे, जिहड़े 8 पहर तेरे नाम दे दीवाने रहिंदे ने, गुरु द्वारा जपदे ने, वो किहो जी ने? पंचम पातशाह बाणी लिखाउंदे ने, चंगे चंगे ब्रह्म ज्ञानी बैठे ने सभा विच। पुछया गया गरीब नवाज, इन्ना सोहना संघासन बनया हुंदा सी बेरी दे थल्ले, जिथे पंजवें पातशाह बाणी लिखाउंदे तंबू च। बाहरले पासे भाई गुरदास बाबे बुढ़े वर्गे ब्रह्म ज्ञानी आके सज जांदे, सवाल करदे बाहरों बैठ के सच्चे पातशाह, जिन्ना ना बिसरे नाम से कनेहिया। अंदरों तंबू विचों आवाज आ जांदी, भाई गुरदास ओ तां साईं वर्गे ने पेत ना जानी, पेत ना जानी। साईं वर्गे ने पेत ना जानी, पेत ना जानी। पेत ना जानी, साईं वर्गे ने साईं वर्गे ओ साईं वर्गे ने उता साईं वर्गे ने पेत ना जानी, पेत ना जानी। साईं वर्गे ने पेत ना जानी, पेत ना जानी। पेत ना जानी, साईं वर्गे ने साईं वर्गे ने वाहिगुरु साईं वर्गे ने साईं वर्गे, साईं वर्गे, साईं वर्गे, साईं वर्गे। साईं वर्गे ने पेत ना जानी, पेत ना जानी। सुता साईं वर्गे ने पेत ना जानी, पेत ना जानी। साईं वर्गे ने पेत ना जानी। साईं
महापुरुष वेद बाणी तो भी अगली गल बोल दिंदे ने। वेदां ग्रंथां विच की ये तुहाडे लिखिया होया है, कि ये तुहाडी वेद बाणी विच इहो जे प्रवचन लिखे हुए ने जिन्हों वेद नहीं जान सकते, महिमा ना जाने वेद, ना उहदे भेत नूं जान सकते ने। एक भेत है, एक भेद है, तीजा शब्द अभेद है। भेत लैना, कोई घर दा भेती भेत लै रहा है, एक भेद नूं जाणदे ने उहदे नूं, एक उहदे विच अभेद हो गए, रच गए उहदे विच। जिवें एक मिट्टी दा घड़ा पिया, उहदे उत्ते एक तुबका पानी दा डिग पिया, उहदे विच समा जांदा है, पर पानी समा जांदा है, थोड़े चिर तो बाद सुक जांदा है। जे किते उहदे विच एक तुबका घिओ दा पा दईए, उहदे विच ऐ समा जांदा है, भावें टुट जावे पर वो घिओ किसी ना किसी समय फिर भी निकल आउंदा है प्रमाण दे तौर पे। किस तरह महापुरुष कहंदे एक हर एक दे अंदर परमेश्वर दा नाम है, वो नाम दे उत्ते मिट्टी कट्टा जम्मिया पिया है। ध्यान ना विचार नूं समझियो जरा। हर एक दे अंदर परमेश्वर दा नाम है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास, सच्चे ने बनाई है। आप रहने ली जगह मकान बनाया, आप दी जगह आप ही मुकर्रर करती उन्हें, सच्चे ने, भगवान ने। पर उहदे उत्ते मिट्टी घट्टा जम गया। महापुरुष एक भांडे का जिक्र करते ने, जिमें किसी मिट्टी के बर्तन विच घिओ पा दिए, घिओ रच गया, वो भांडा टुट गया, रूड़ी ते सिड़ता, उहदे उत्ते मिट्टी घट्टा जम गया, क्योंकि उहदे ते धंधियाई है। फिर किते ऐसी नेरी आ जाए, हवा चल पवे, उहदे उत्ते जिहड़ा मिट्टी घट्टा पिया नेरी लै गई चुक के। फिर देव ने नाल किते मींह पै जावे, वो धोता गया भांडा मिट्टी का। कितना सुंदर प्रमाण है, कितना समा लग्या हुए प्रमाण बनाउण वास्ते हकीकत विच। फिर कहंदे आसमान साफ हो जाए, सूरज चमक पवे, सूरज की तेज रोशनी दे नाल जेड़ा घिओ कई साल पहला वो भांडे विच रखिया सी, पर वो भांडा मिट्टी का टुट गया सी, अज तेज रोशनी दे नाल, तेज धुप दे नाल उहदे विचों घिओ फिर सिमना शुरू हो गया मिट्टी दे भांडे चों। क्यों? क्योंकि तेज रोशनी है, धुप तेज पैंदी है, उहदे चों घिओ पिघलना शुरू हो गया। गुरु जी कहंदे ने इसी तरह ये मिट्टी का बनया होया पुतला है, घड़ा है, इहदे विच परमेश्वर का एक नाम रचिया होया है, पाया होया है, पर उहदे उत्ते ज्यादा कूड़ कबाड़ दे ढेर लगे पे ने। जेड़ा बाहरला भांडा पिया सी रूड़ी ते, उहदे उत्ते तां चलो नेरी आ गई, नेरी ने चुकता। तेरे अंदर नेरी किवें असर करू? जदे ही प्रमाण दिता गुरु साहब ने, कहंदे ज्ञान की आई आंधी, आंधी नेरी नूं कहंदे ने।
कहते ज्ञान रूपी नेरी आऊगी, ज्ञान रूपी तेरे भांडे दे उत्ते के ले जो। फिर गुरु जी तेरे ते किरपा करनगे, ज्ञान रूपी सूरज चढ़ाउणगे। फिर इहदे विचों सत संगत द्वारा ज्ञान प्रगट होवेगा। फिर पता लगेगा ये कारण की बनिया। एक शाहूकार अमीर धनाड़, पर एक लोड़ सी ओनू पुत्र दी। एक कोई विद्वान लंघिया जांदा है, कच्छ विच किताबां दित्तियां ने, पुछदा जांदा है भाई किसे नूं लोड़ है? अज भी थां थां ते ज्योतिष विद्या दे केंद्रां दे बड़े लिखे हुए पढ़ते हैं रास्तियां च, पर जदों ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ बोलबाला सी उदों ज्योतिषां वाले सारी लुक गए सी। गल कुछ भी नहीं, भरमां च पाउणे, चक्करां च पाउणे, तुहानूं पता किसी नूं नहीं की गल है। खंड ब्रह्मंड दा कौन जोड़ ला सकता है? परमेश्वर दे नाम तो उत्ते किहदे कोल पावर है? थां थां ते ज्योतिष केंद्र नंगी जांदे विद्वान अमीर धनाड़ ने बुला ले, महाराज साडी कोई रेखा देखो। ये आम ही गल है, कोई गली महल्ले विच आ जाए असी भी दिखाउण लग जाने हैं। जिन्हां नूं आप दे बारे नहीं पता, वो दूए दा की दस सकदा है? आप दा ही नहीं पता। अंधे नूं पुछोगे तुसी भी राह किधर नूं जांदा है, की दसेगा? कोई महसूस ना करियो गल। मैं तो उस स्टेज की गल बोलदा जिथे ये सारियां चीजां थल्ले ने, उथे कोई नजर कम करदी है, बस बाकी सब गेट है। गल आओ, विद्या भी जरूर है, ये नहीं गल भी विद्या है नहीं है, पर विद्या तो ऊपर एक वस्तु है, ओदी गल ध्यान दियो। वो बैठ गया अमीर धनाड़ दे घरे। वो अमीर धनाड़ सेठ पुछदा जी मेरे घरे कोई दीपक नहीं जगया, कृपा करो। कहते ऊं करो, दान करो, पुण्य करो। देख लिया जिहो जिहा पुण्य दान करना सी, दस दिता, कर लिया। थोड़े समय तो बाद हिसाब लाया। हिसाब ला के कहंदा भी एक गल है, पुत्र तो हो जाएगा, जे तुसी पुत्र दी मंग ना करो तो चंगी गल है। वो विद्वान कहंदा क्यों? क्योंकि तुहाडे घरे जेड़े पुत्र ने जन्म लेना है ओदी उम्र थोड़ी है, और ये उम्र घट लिखा के आना है। वो कहंदे जी साडी इन्नी माड़े कर्म ने, साडे घरे पुत्र ने आना है, ओदी उम्र घट है। हाँ, ओदी उम्र घट है। वो कहंदे कोई गल नहीं, भावें उम्र कितनी भी होवे सानू मंजूर है। कहंदे सत बचन पुण्यदान कीता, पुत्र ने जन्म ले लिया। ज्यों ज्यों पुत्र बड़ा होई जांदा है, माता पिता दलगीर होई जांदे ने, माता पिता उदास होई जांदे ने। पुत्र पुछदा है माता पिता नूं, तुसी दिनों दिन तकड़े होना सी, की गल तुहानू अंदरों अंदर की घाट पैगी? माया बहुत है, मैं भी तुहाडे घरे आ गया। वो कहंदे बेटा की दसीए, जदों साल बाद ओहदा जन्म दिन आउंदा है
उदों तो ही गिन लग जाते ने ते इन्ने उम्र घट गई। विद्वान नूं बुलाया, हिसाब लवाया, इहदी किन्नी उम्र है? उन्हें हिसाब ला के दस्या, कहंदा इहदी उम्र है 20 साल। भर जोबन 20 साल, इदू ज्यादा नहीं। वो कहंदा एक मिनट भी वध नहीं सकता, ना ये ਵਧੇ ना घटे। ये तो धुरों लिख के आई है, इनू मैं वधा नहीं सकता। मैं पुण्यदान दे नाल तुहानू पुत्र तां दवा दिता, पर मैं उम्र नहीं लवा सकता। हुण इत्थे है, ढूंढ सज्जन संत पक्कियां। हुण इहो जे रब दे प्यारे गुरु नानक दे घर दे बख्शे होयां दी कोई तलाश कर, जेड़े कोई बख्शिश कर देन, रहमत कर देन। पर वो प्यार जिस वेले 20 साल दी उम्र तो थोड़ी उम्र रह गई, 2-4 साल रह गए, वो माता पिता जिन्हां ने बड़ियां उडारियां मारनियां सी, वो दलगीर हो गए। बड़े दिन पर दिन इउं घाट महसूस हुंदी है। ये पुत्र ने 20 साल की उम्र विच चलिया जाना है पर जोबन विच। रोज अरदासां करदे ने, हे पातशाह किरपा करो, सानू कोई ये तां नहीं पता तू किहड़े द्वारे ते बैठा है। जिथे भी किते हैं, जेड़े भी भेख विच हैं, बख्शिश कर दे, रहमत कर दे। साडी इस बच्ची दी उम्र नूं, टुटी होई नूं जे गंढ तुप सकदे हो, ऐ गुरु जी नाम कोई नहीं। जिमें आपां कहने नीली छत, आकाश है नीली छत, कोई रब नहीं है। रब दा ठिकाना किते होर है। केवल आम गल है नीली छत वाला। नीली छत वाला तां आकाश ही है कल्ला। इहो जे आकाश बहुत ने। किन्ने क आकाश ने, घटा मठा बड़े आकाश ने। किन्ने आकाश दिखाइए। गुरु नानक जी ने थका दिता। किन्ने क पतालां च ले गया, किन्ने क आकाशां ते ले गया। नीली छत वाला कोई रब नहीं, केवल आकाश है। पर ओदे आकाश मंडल दे विच एक थां ते टिकाणा रब दा भी है। किते इको ही दरवाजा है ओदा, इको ही पासा है। 4 दिशा दे विचों एक दिशा दिशा एक, 4 दिशा पूरब पश्चिम उत्तर ते दक्षिण, उन्हां विचों एक पासे रब दा वास है, भगवान रहिंदा है। कितों भी आवो, सचखंड चों आवो, इहो जिहियां अरदासां नूं सुण के एक दिन बाबा श्री चंद जी महाराज दे गड़वई बाबा कमलिया जी, जिन्हां नूं दुनिया कमला कहंदी सी, कमला आ कमला आ गया। जिन्हें बुद्धू शाह दे आवे नूं कच्चा कीता सी, वो कमलिया। भाई लखू भी कहा हजूर ने। पर कमलिया जिन्हां ने ऐ बाणा पाटिया पाया, पर वो करदे की सी। बाबा श्री चंद जी आवाज दे देंदे, कमलिया आए महाराज, की हुक्म है? चलो आपां फलानी जगह ते चलना है, बैठो मेरे मोढियां ते। बाबा श्री चंद जियां नूं मोढियां ते बहा लेना, ये सवारी दे नाल चले जाना। क्या आनंद सी वो प्यार।
अज बाबा कमलिया जी महाराज हिरदे दे अंदर एक मन विच ख्याल आया कि भुख लगी है। भगवान ने नेत बनाती, नेत तरीका जतन। तुरदे तुरदे वो शाहूकार दा दर खुला सी, अमीर दा, ओदे घरे चले गए। ओदे घरे पहुंच के अमीर धनाड़ दी घरवाली कहंदी, आओ महाराज कोई बाबा जी आ गए। वो तो लभदे सी कोई रब दा प्यारा मिल जावे। सेठ कहंदा कौन है? कहंदे बस्तर तां पाटे ने, पता नहीं कौन ने। महाराज कौन हो तुसी? कहंदे कमलिया कहंदे ने बाबा श्री चंद जियां दे चरनां च रहने आ। फिर किवें आए हो? कहंदे भोजन छकना है। भोजन, बैठो। भोजन तैयार किया, छकाता। उन्ने समय च माता भोजन भी बनाउंदी है ते रुदन भी करदी है, पर ओदी दशा नूं देख के बिन बोलिया सब किस जानदा। माता ने भोजन छका दिता। भोजन छकाया। शाहूकार कहंदा है ये बाबा श्री चंद जियां दे चरनां च रहिंदे ने, इन्हां तो मंग लै। वो कहंदी नहीं, मंगना नहीं है। ये पता नहीं की कह जाना। ये रब दे प्यारे ने, जे कुछ होर कह गए इन्हां तो डरो। भोजन छकिया। जद भोजन छक के दरां ते गए ना, दरां ते कहा तो नहीं सी किसी ने भी कहो। जांदे जांदे दरां च खड़ के कहंदे 40 साल, 40 साल। समझ नहीं आई किसी नूं, कोई गल नहीं। 40 साल कह के चले गए। ओ विद्वान उधरों 20 साल दी उम्र नेड़े होगी बच्चे दी। 20वां लंघ गया, 21वां लंघ गया। हौली हौली 22, 23, 25, 27 साल तक चली गई। माता पिता सोचते ने इन्हें रहना नहीं सी। नाले कहंदे ने ना तिल वधे ना घटे। की कारण हो गया? एक दिन वो विद्वान भी नंगिया जाता जाता आ गया। मैं इन्हां दे घरे प्रशादा छक के गया सी, आ गया। आओ महाराज भोजन छको। वो कहंदा भी ऐं दसो तुहाडे पुत्र दा की हाल है? की तुहानू उस दुख ने कोई सदमा तो नहीं ज्यादा पहुंचाया? वो कहंदे जी असी तो आपदे पुत्र दी उम्र रोज गिनदे आ, वो तो 27, 28 साल तक पहुंच गया। आ देखो सोहने वधिया काम करदा है। इउं लगदा है जिवें भगवान इहदी उम्र दे के भुल गया होवे। उन्हें आप दा हिसाब कढ लिया। हिसाब वही है, हिसाब बिल्कुल सही है। 20 साल दे उत्ते बिंदी लगी है। 20 तो अगे नहीं जा सकती गल। एक ही है भावी। ये भावी दा चक्कर है। इस विच हुण 20 तो 21वां किवें चलिया गया? 20 तो सवाया नहीं सी हो सकता। तुसी अध तो उपर चुके फिरदे हो, 27 साल तक पहुंच गए। 30 ऐं दसो ये कारण की है? वो कहंदे जी पता सानू भी नहीं, पर एक बाबा श्री चंद जी महाराज दे सेवादार आए सी, प्रशादा छक गए, मंगिया कुछ नहीं, दरां ते खड़ के कह गए 40 साल। वो जेड़ा विद्वान सी
ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਬਹੁਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 40 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਦਾਤਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਬਾਜੂ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ਬਦ ਐਂ ਪੜੋ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਟੇਕ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਵੇ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਵੇ, ਇਉਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਓ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਸਮ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਲੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ 40 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਧਰਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਕੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਐਉਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਓ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ, ਔਰ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ, ਪਰ ਜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਅਖੀਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ।
कि बेटा जे हुण तैनू डॉक्टरां ने जवाब देता, हुण एक दर रह गया, जे तू उत्थे जा सकदी है। किहड़े दर ते? ना तां तोरिया उहने गुरुद्वारे, ना तोरिया किसे मंदिर विच, ना तोरिया किसे मसीत विच। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ बेटा एक चर्च बनी हुई है, चर्च अंग्रेज लोकां दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चली जा। ਉੱਥੇ पादरी ਰਹਿੰਦਾ जिवें गुरुद्वारे साहब दे ग्रंथी पादरी। ਉੱਥੇ जाके बेनती कर, जो बात दवा ना कर सके, ये भी रचना उन्हां दी हुई है। जो बात दवा, शब्द उन्हें ने दद्दा ते वावा, दवा ना कर सके, वो बात दुआ से होती है। ऐ दुआ, बेनती, मंगना, जो बात दुआ ना कर सके वो बात दुआ से होती है। अगली गल तां सिरे दी लिख दिती, मुर्शद कामल मिलने से। मुर्शद, मुर्शद मैंने गुरु, कामल मिल गया, फिर की होगा? कामल मुर्शद मिल जावे की हुंदा है? फिर बात खुदा से होती है। फिर बात खुदा नाल हुंदी है, रब नाल। जे सतगुरु दे नाल जुड़ जावे, मुर्शद दे नाल जुड़ जावे, मुर्शद खुदा नाल जोड़ दिंदा है। आओ चर्च विच चली गई, पादरी पुछदा है, थोड़े शब्दां च बख्यान करां। पादरी कहंदा बेटा मेरे कोल तां इक्को ही शब्द है, मैं गॉड दे अगे, खुदा दे वाहिगुरू दे अगे अरदास करदा, तू आ शब्द पढ़िया कर। उन्हें आप दी भाषा च, ये नहीं भी अज एक ही गुरबाणी ही सारी दुनिया नू तारूगी। प्यारिओ, जिथे शरद है किसे दी, कोई गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, पुराण पढ़ो। जे गॉड चर्च दे विच जाने हो तां फिर उन्हां दे बन के रहो। जिथे भी धर्म दे विच खड़े हो, वो धर्म दे विच खोपरियां लै जान, रंबियां नाल सिदक ना जावे। जेड़े धर्म च है, धर्म दे बदले आरियां ते चढ़ गए, धर्म दे बदले देगां चुबल गए, धर्म दे बदले आरियां नाल चरवाता शरीर। वो धर्म दे विच एक शब्द देता, उन्हें आके बचना तो है नहीं, शब्द पढ़न लग गई। स्नान नहीं किया, 5 स्नाना करके शब्द पढ़न लग गई। हुण काम करना शरदा ने, जदों शरदा दे नाल उन्हें शब्द पढ़िया, अज होर कल होर, एक दिन इहो जिहा हो गया जिस दिन शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त बन गया, कोई दवाई की लोड़ ना रही। उन्हें जाके चर्च दे विच मत्था टेकिया, ऐ गॉड, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, सच्चे पातशाह तेरी किरपा नाल तंदुरुस्ती मिल गई। गई डॉक्टरां दे कोले, मैनू चेक करो। जिहड़े सारियां नालों सीनियर डॉक्टर सी, उन्होंने कलम ले ली मूँह च, बेटा बीबा तैनू तंदुरुस्ती दवा किने दिती? साडियां दवाइयां, साडियां डॉक्टरियां, तैनू किने राम करता? कहंदी चर्च दे विच एक पादरी रहिंदे ने, उन्होंने शब्द राही मैनू तां पार करता। वो डॉक्टरां नू क्रोध आ गया, असी डॉक्टरी कीती, एडे एडे MD दे कोर्स कीते, बड़े दर्जे लए, जे एक पादरी ने इहो जिहा काम करना सी।
डॉक्टर आ गया। संत महाराज कहते पादरी कोले, वो आके कहंदा जी तुहाडे च की ताकत है भी तुसी शब्द दे नाल ही राजी कर सको। पादरी कहंदा मेरे च कोई ताकत नहीं, जे ताकत है तो वो गॉड च है, खुदा च, वाहिगुरु च है। डॉक्टर कहंदा मैं नहीं मानदा। वो कहंदे चंगा एक गल मना देना, एक सेकंड च तुसी अपना ब्लड प्रैशर टैंपरेचर जो भी है नोट करो। ये उन्हां दे वचन ने, पवित्र वचन, अमृत अमोलक वचन। टैंपरेचर नोट किया डॉक्टर ने। वो कहंदा भी ये तो मैं रोज नोट करदा। वो कहंदा रोज तो करदा पर प्रैक्टिकल तैनू इत्थे कराउणी है। जिस वेले नोट किया सही सी। हुण वो पादरी ने आप दी भाषा विच डॉक्टर नू बुरा भला बोलना शुरू किया। समझ आई ना प्रेम ना। डॉक्टर दी पहला बिल्कुल नब्ज ठीक और टैंपरेचर ठीक, ब्लड प्रैशर ठीक। वो पादरी ने शब्दां दे राही बुरा भला गाली गलोच जद दो चार वचन कड़वे बोले, वो डॉक्टर नू क्रोध आ गया, गुस्सा। पादरी जी कहंदे ऐं करो हुण नोट करो फिर आपदा ब्लड प्रैशर टैंपरेचर हुण नोट करो। तो जद नोट किया वधिया होया, हद्दां टप्पिया होया। पादरी जी कहंदे इउं दस तैनू मैं कोई दवाई दिती, तैनू मैं कुछ कोई सट मारी, तेरा टैंपरेचर बिल्कुल सही नॉर्मल सी, ये बद क्यों गया? वो कहंदा जी तुहाडे कौड़े शब्दां दे नाल क्रोध आ गया। वो कहंदा जेड़ा शब्द मामूली दुनियावी आम जनता बोलदी है, गाली गलोच दिंदी है, ये तो आम जनता दीयां गल्लां ने जेड़ियां मैं बोलियां ने। ये बोलण नाल तेरा टैंपरेचर बढ़ सकदा है कि वो अल्लाह वाहिगुरु खुदा दे पवित्र नाम दे नाल वो घट नहीं सकदा, घट नहीं सकदा। जो चाहे वो कर सकदा है। डॉक्टर कहंदा बिल्कुल सच है, रब जो चाहे सो कर सकदा है, पर करूगा ओह जिहदे शब्द दे विच ताकत है। सिखो शब्द प्यारिओ, जे सीखना है तां एक शब्द सीखो। केड़ा? गुरु का शब्द। तदे कह गुरु का शब्द रखवारे, गुरु का शब्द ही तेरा राख है। वो विद्वान कहंदा जे वस्त्र पाटे हुए ने, इहो जी कमले ने 40 साल कहते तां मेरी पढ़ाई ने की करना है। गुस्से विच क्रोध विच भरिया चल पिया किधर नूं? जिथे बाबा कमलिया जी पे सी। इत्थे ध्यान दिओ। हुण बाबा कमलिया जी आप दी मस्ती विच पए ने, उत्ते कंबली लई है। जेड़ा विद्वान गया उन्हें जाके पूछया भी बाबा कमलिया केड़ा है? वो कहंदे ओ वस्त्र लई पए ने, आप दे अंगां नूं संकोची पे ने। यह भी गल उच्ची है। बाबा कमलिया जी पे वो सी विद्वान, उन्हों नहीं सी पता गल की है। उन्हें जाके क्रोध विच बाबा कमलिया जी महाराज ने पवित्र ढूही दे अंदर एक लत मारी, चरण मारिया जोर दी। गुस्से च जाके पियां दे वो पासा लई पे सी, पिठ करी। इधरों कोई बंदा आया,
इधर आने वाले नूं की पता है कौन है? उन्होंने पता है जिहड़ा तरकालदर्शी है। वो पे पे की कहंदे ने, इउं नहीं पुछया तू कौन है, क्यों मारी? पिया पिया ने दूजी आवाज देती, कहंदे 60 साल। 60 साल। एक लत होर मारती क्रोध विच, भी ये तो उठिया ही नहीं, एक लत मारी ते जद दूजी लत मारी कहंदे 80 साल। दूजी लत मारी ते कहंदे 80 साल। फिर खोलिया दिमाग दा ताला। ओहो, एक कमला रमला फकीर 20-20 साल दियां पौड़ियां चढ़दा जांदा है, रुक गया। विद्या तो अगली गल है, जदों 5-7 मिनट देखिया भी तीजी लत नहीं बजी, फिर बाबा जी कहंदे ने आप, बाबा कमलिया जी कहंदे ने, कहंदे पंडिता 100 साल वाली आरजू बना दमा, एक लत होर मार दे। 100 साल वाली आरजू बना दमा, एक लत होर मार दे। घट कर दे। बना दमा जे एक लत 100 साल वाली आरजू। जू बना दमा जे एक लत 100 साल वाली। 100 साल वाली आरजू बना दमा, एक लत होर मार दे। 100 साल वाली आरजू बना दमा, एक लत होर मार दे। वही 100 जे एक लत बना दमा, एक जे एक 100 साल वाली। इउं दस, होर मार दे एक लत। फिर दिमाग खोलिया, बाबा जी तुसी किहदे चरनां च रहिंदे हो? कहंदे असी गुरु नानक पातशाह दे सपुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज दे चरनां च रहिंदे आ, उन्हां दी सेवा करदे आ। तू आके लत्तां मारदा है? चरण फड़े। कहंदे इउं दस, तेरे वेद बाणी च है आ गल लिखी हुई? वो कहंदा जी ऐं दसो, मेरे वेद बाणी दे नालों उपरली गल बोली है तुसी, ये कित्थों बोली है? वो कहंदे पता मैनू भी नहीं, बुलाया आप है, जिवें तू बुलाउने उवें बोलदे आ। बुलाउण वाली कोई ताकत होर है। पर एक गल कबीर जी कहंदे, चंदन का बिरबा भला बेड़ियों ढाक पलास, ओई भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास।
ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਏਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਓ ਵੇਦ ਬਾਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਈਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਯਾਦ ਰਹੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਹ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੀਸਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਬਕੁੰਠ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ। ਆਓ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ? ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ, ਟੇਕ ਲਵੋ। ਟੇਕ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਆਸਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਸਰਾ, ਟੇਕ ਆਸਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਟੇਕ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਅੰਧਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਗਏ।